السلام علیکم کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ مبین افضل جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، ان سے کریں گے دلچسپ باتیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، کیسے ہیں مبین آپ؟ اللہ کا کرم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے۔ اچھا مبین بتائیے گا، آج کل جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کے کام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ایز اے سینئر رہنما پی ٹی آئی میں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کیا چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور بجٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ کس طرح کا بجٹ ہے، اور عوام کی جانب سے جو شکایات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں میں اپنے حلقے کی بات کروں NA54 کی، تو ہم نے جتنے ڈیولپمنٹ کام یہاں پہ کرائے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اسٹریٹ سے لے کے پورے سیکٹر وائز تک، یہ ٹوٹل جب تک بھی یہاں پہ امجد وکیل صاحب لڑتے رہے الیکشن انہیں کی طرف سے، موسٹلی کافی دفعہ وہ جیتے ہیں یہاں سے، لیکن وہ کام نہیں کرا سکے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے کام ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی سہولت لوگوں کو میسر کی گئی ہے، پانی کی سہولت میسر کی گئی ہے فرسٹ ٹائم۔ آپ کی جو گیس کا پرابلم تھا یہ بہت پرانا چل رہا تھا یہاں پہ، یہاں پہ سردیوں میں گیس بالکل نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اب گیس ہے، اور پانی یہاں پہ جو ہے آپ کو بورنگ سے لینا پڑتا تھا، لیکن پینے کے لیے آپ کو فلٹر جانا پڑتا تھا، لیکن ابھی پائپ لائن بچھایا گیا جس وجہ سے آپ کو پانی جو ہے وہ الحمدللہ نیچرل آپ کے گھر میں ملتا ہے ہر چیز۔ تو یہ اسد عمر صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے، ہمارے ورکرز نے بڑی ایفرٹ کی ہے، اس میں لوگوں نے بڑی جان لگائی، الحمدللہ بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ اور رہ گئی بجٹ کی بات، تو دیکھیں بجٹ یہ یونیک تھا الحمدللہ خان صاحب کی طرف سے، اور یہ ایک پہلا تحفہ تھا کامیابی کی طرف ہمارا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ود ان 6 منتھ آپ کو اس کے رزلٹ بھی نظر آئیں گے، اور عوام خوشحال بھی ہوگی الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا مبین یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کب جوائن کیا، کتنا عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا 2012 میں، اور اس کے بعد میں ایز اے ورکر کام کیا، اس کے بعد میں F10 F11 کا پریزیڈنٹ بنا، پھر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد کا بنا، تو کرتے کرتے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو فیلڈ میں آئے اور کام کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہو کے، تاکہ عوام کا خدمت کرنے کا موقع ملا۔ صحیح۔ اچھا مبین جس طرح سے آپ نے کہا کہ عوام کی خدمت کی جب آپ نے بات کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک غریب عوام ہے اس کی خدمت جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے؟ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، نعرہ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں صرف جو ہیں وہ شاید تقریروں تک، یا ہمیں بس وہ لفظی گولہ باری ہی نظر آتی ہے۔ عوام ان چیزوں سے کیسے مستفید ہوگی؟ چونکہ ابھی کووڈ کی سچویشن آپ نے دیکھی، یہ کووڈ سچویشن میں اسکولوں کا جو حال ہے، اسٹوڈنٹس کا جو حال ہے، جو نوکری پیشہ لوگ تھے، اس میں اسپیشلی ہم بات کریں ان لوگوں کی جو کم تنخواہ دار تھے، جو اگر ہوٹل کے ویٹرز تھے، اس طرح کے لوگ جو کم آمدنی والے لوگ تھے، ان کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑا۔ تو کیا اس بجٹ میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو غریب متوسط طبقہ تھا؟ اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ آپ نے کہا کہ سیاست میں آنا منشور یہی ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا خدمت کیسی کی جائے، دیکھیں اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ایریا کون سا ہے، ان لوگوں کی نیڈز کیا ہیں، آپ کس حلقے سے لڑ رہے ہو، ہر انسان کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں۔ آپ میں بات کروں F10 F11 اور پھر گولڈا شریف کی، تو یہاں پہ لوگوں کی نیڈ بالکل ڈفرینٹ تھی، یہاں پہ کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، کوئی لیڈیز کے لیے کوئی۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہم نے روڈیں سڑکیں یہ وہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں E11 میں بھی کوئی اتنا اچھا ہم دیکھتے ہیں سڑکیں یا انفراسٹرکچر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور گولڈرا کی تو حالت وہی ہے کہ بندہ گولڈرا میں آتا ہے تو فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت کسی پرانے دیہات میں چلے گئے ہیں، تو مطلب وہ تو اسی طرح سے ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں آپ کی معلومات کے لیے کہ E11 پرائیویٹ سوسائٹی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہم نے روڈیں سڑکیں ہم نے بنائی ہیں، تو وہ ریلیٹ کر رہی ہیں گولڈرا سے؟ ایسے پاسبلٹی نہیں ہوتی، وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر۔ صحیح۔ اس میں 4 سوسائٹیز ہیں جو E11 کو ڈیل کرتی ہیں، صحیح، جو ان کی اپنی مینجمنٹ ہے، ہر چیز اپنی ہوتی ہے۔ لیکن گولڈا شریف آج کا نہیں ہے، تو گولڈا شریف کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور اس کی اسٹریٹ اس حساب سے بنی ہوئی ہے، یہ ایز اے CDA سیکٹر تھا نہیں، لیکن چلیں وہ کنجسٹڈ ضرور ہے، لیکن وہ ایسی تو ہونی چاہیے نا۔ سنیں یہ CDA سیکٹر نہیں تھا، یہ میپ پہ بنا ہوا نہیں ہے گولڈا شریف، ٹھیک ہے، اور اسے اب وہی کام ابھی خان صاحب نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں ٹائم لگے گا الحمدللہ، آپ کو صفائی بھی، لیکن ابھی تو 3 سال تو گزر چکے۔ سنیں 3 سال تو گزرے، لیکن پروجیکٹ دیکھیں نا آپ، ساری اسٹریٹ اب اسٹریٹ کا جا کے معائنہ کریں۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں 3 سال اگر گزر گئے، 3 سالوں میں ایک کھدائی تک
नहीं हुई, हमें कोई पहना फिक्स नजर नहीं आया, कोई बोर्ड नजर नहीं आया, कोई काम होता नजर नहीं आया, कोई इंजीनियर्स हमें नजर नहीं आए। मेरे सामने बैठ के क्यों झूठ बोले? खुदाई कैसे नहीं हुई? मैं खुद कर गई हूँ बोल रहा। आप रहे ना, मैं तो खुद खुदाई करवा रहा हूँ खड़ा होके। मैं खुद कर गई हूँ बोल रहा, आप बोल रहा, मतलब बोल रहा इंटर होते हुए फील होता है कि हम किसी नेगेटिव एरिया में चले गए। अब मेरे साथ अभी जाए, चलिए विजिट कर लेंगे। तो मैंने काम किया हुआ है। अच्छा। और आपकी टीम्स, कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं जो मेरे साथ आके वहाँ शो नहीं कर चुका हो ऑन द ग्राउंड। मैंने खुद काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ। वो आपके जो नाला बह रहा है, सबसे पहले इस नाले का चले नाला बह रहा है या आपने जो काम किया, लेकिन जब हम इंटर होने गोलरा में अगर वहाँ से हमें एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है तो क्यों? आप अपनी जॉब आपने यहाँ पे स्टार्ट की है तो आपको बिल्ड करते हुए टाइम लगेगा। नॉट अ फर्स्ट टाइम आप हमद नवीर या फिर उसको क्या कहते हैं किसी बड़े एंकर के उस पर चली जाएंगी। इसीलिए जब गोल्डे का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो इसको बिगड़े हुए इतने साल हो गए, उसको डेवलप करते हुए हमें टाइम लगेगा। 3 साल से ज़्यादा। 3 साल में आप उस तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट सारे आपको कंटिन्यू लगे, टर्नओवर तो पूरा करने दें। सही, चलें टेन्योर पूरा होगा। बहरहाल इस तरह से तो हम अवामी जो दावे हैं जो लोगों के साथ प्रूफ करते हैं, हम तो दावे कर नहीं रहे, हम तो आपको कह रहे हैं, हम ऑन द ग्राउंड हमारे साथ हैं, हम आपको काम दिखाते हैं। हम दावे करें तो फिर बात हुई ना, हम तो प्रूफ कर रहे हैं आपके सामने। चलें सर, मान लिया आपने कि आपने जो दावे किए हैं वो दावे नहीं हैं, आप प्रूव कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें, ये मसाइल तो अवाम के साथ चलते आए हैं, अज़लों से चल रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि शायद अवाम जो वोट देती है उसको उन्हें यही हक मिलता है, यही उनका अल्हम्दुलिल्लाह। कवर्ड की बात की, कवर्ड में हम सरफरिस्त थे। कवर्ड के अंदर मेरी बात सुने, कवर्ड के अंदर इस बार ये वो एरिया था जिसमें राजा मोबिन सरफरिस्त था। फरिस्त 20,000 पीपल जितने भी घराने थे, सबको उनकी सफ़ेद पोशी का ख्याल रखते हुए उनके घर में राशन, हर चीज़, पैसे हमने पहुँचाए। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा। और ऑन द ग्राउंड पुलिस मेरे साथ थी। आप किसी आईजी से पूछें, किसी डीएसपी से पूछें, खालिद अवान साहब की मेरे साथ डिप्टी थी, मैं खालिद अवान साहब के साथ ऑन द ग्राउंड था काम करते हुए। आप ये कह ही नहीं सकते हम काम नहीं कर रहे थे। हमने किसी की अपनी जान को ख़तरे में डाल के ऑन द ग्राउंड लोगों के साथ खिदमत की है, और ये अल्लाह के लिए की है, बंदों के लिए नहीं की है, ना दावों के लिए करते हैं। इसका अजर हमें अपना खुदा देता है। सही, ठीक है सर। अच्छा सर, वॉइस ऑफ कश्मीर के आप चेयरमैन हैं। कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी इमरान खान साहब ने भी अपने जो उन्होंने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो अगर ख़ित्ते में हम चाहते हैं तो उसमें कश्मीर का मसला जो है वो सबसे पहले हल होना चाहिए और कश्मीर के मसले को उजागर करना चाहिए, और उसके बाद ही जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं और ख़ित्ते में हम बरकरार हो सकता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर को इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। कश्मीर को जिस तरह से खान साहब ने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल कंट्री में, तो मैं कहता हूँ कोई आज दिन तक इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, इसमें दो राय आप कभी रख ही नहीं सकते। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मेरी थोड़ी सी सोच चेंज है, वो ये है, देखें कश्मीर ने आज़ाद होना है अपने टाइम से, वो तो कोशिश हर मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान हर लोग अपनी तरह से जो जैसे कोशिश कर सकते हैं अपना एहसान डाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो कश्मीरी यहाँ पे महाजरीन हैं, जो आए हुए हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके वालिदैन हैं, 2 फैमिली बट के रह गई हैं, आधी उस कश्मीर में चली गई हैं, आधी यहाँ पे आ गई हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है, उनको राशन की ज़रूरत है, उनके ID कार्ड बनने की ज़रूरत है, उनको ताकि तरबियत की ज़रूरत है, स्कूल में एडमिशन के लिए उनको बंदे चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चों की शादी के लिए उनको पैसे चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को हिस्सा डालना चाहिए, जो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा मुबीन, बताइएगा, जब से आप चेयरमैन बने हैं, आपने अपने हन पे ऐसे क्या काम किए हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने के लिए? ऐसी कौन सी चीज़ें आपने की हैं कि जो समझते हैं कि ज़रूरी थी? देखें, अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं, मैं और मेरी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है, जो ऐसे तो मेरी टीम बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं उसको रजिस्टर्ड टीम जो है मेरे साथ जो काम करती है, जिनको मैंने ओथ दिए हुए हैं, वो तकरीबन 20 हैं। सही। उसके राउंड अबाउट उसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो तो अनलिमिटेड थे, लेकिन उसके अलावा मैंने जो कोशिश की है वो सोशल वर्क पे काम किया है कि कश्मीर महाजरीन के साथ जाके हम बैठे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। और जो स्टूडेंट हमारे कश्मीर से यहाँ पे वीज़ा पे आते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम फेस होती हैं हम उनके साथ होते हैं, उनको सॉल्व करके देते हैं। जिस तरह से उनको मदद की चाहिए होती है, माली मदद चाहिए हो, गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ वो काम करते हैं। टोटली उनके साथ हम ये काम करते हैं और ये हमें फ़ख्र महसूस करते हैं, और मैं अपने आप को ये फ़ख्र समझता हूँ कि ताकि मुझे छोटा सा भी मैं ऐसा डाल रहा हूँ मैं कश्मीरियों के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ठीक है। अच्छा मुबीन, जिस तरह से आपने कहा कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग, मतलब डेफिनेटली आप कोई भी काम है, अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। अगर मैं किसी के लिए कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। फाइनेंस का जो सिस्टम है ये कैसे मैनेज करते हैं, फंडिंग कैसे करते हैं, किस तरह से निज़ाम को चला रहे हैं?
देखें अल्लाह का करम है, ये है कि कुछ खुद से करते हैं, कुछ दोस्त हैं जो हमारे कश्मीर से बिलोंग करते हैं, यूके से हैं, डिफरेंट प्लेस में हैं, वो कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, जो हम किसी से बाहर फंडिंग नहीं करते, हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हेल्प करते हैं और अल्लाह ताला के करम से कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी पूरी कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा मुबीन, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं? पॉलिटिक्स में आपका एक है कि आपने मज़ीद आगे भी बढ़ना है, काम भी करना है, PTI से आप सीनियर रहनुमा भी हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो करनी है? देखें कोशिश ये है कि बेसिकली तो मैं एक शुरू से स्टार्ट से ही जो था वो सोशल वर्कर था। मेरा काम है लोगों की हेल्प करना, काम करना, वो जैसे भी हो, लेकिन अगर हेल्प नहीं भी हो सकती तो कोशिश की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंटिन्यू किया, फिर सियासत में आ गए। तो सियासत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही विज़न है कि जो जब भी मेरे डेरे पे आए या मेरे पास आए वो कभी खाली वापस ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझसे काम हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन अगर वो मेरे पास आते हैं रात को 3 बजे 4 बजे भी आते हैं तो मैं उनके साथ रहता हूँ, जाता ज़रूर हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी बंदे को कहा कि आप काम करें, ऐसा नहीं है, मैं खुद उनके साथ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और काम करवा के उनको दे के आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बड़ा अच्छा विज़न है अपने कश्मीर के हवाले से। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें जाएंगे, कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से कि तहरीक इंसाफ वहाँ से विन करेगी और लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, वो उसको दूर करेंगे और नया विजन इंशाल्लाह यूथ को वहाँ पे देंगे। सही। अच्छा मुबीन, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप मतलब डेवलपर और अमेज़ॉन और ये चीज़ें, इनको थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उसके लिए डिफ़ाइन कर दीजिए। देखिए हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लाइमलाइट डेवलपर के नाम से हमारी कंपनी है और अल मुबीन एसोसिएट के नाम से 2 हैं। तो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम डेवलप करते हैं, चीज़ पहले बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सेल आउट करते हैं। और पहला हमारे प्रोजेक्ट थे लाहौर में तमन्ना हाइट्स के नाम से और हमने वो कंप्लीट किया, फिर हमने बहरिया में कंप्लीट किया, फिर कराची में हमारा कैलिफोर्निया टावर्स के नाम से हमारे 4 फ्लोर थे, वो हमने कंप्लीट डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अब हम मरी में बनाना जा रहे हैं, फार्म हाउसेस के नाम से डिफरेंट हमारे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश है। अमेज़ॉन के साथ हम हमारे पास अकाउंट्स हैं और हम कोशिश, हमारे जो पंजाब से दीवालपुर आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे पोटैटो की पैदावार ज़्यादा होती है, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल कंट्री में और डिफरेंट चीज़ें हमारी, और हमारे जो मैंगो हैं इंपोर्टेड में, डिफरेंट चीज़ें हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं इस पर। सही। अच्छा मुबीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यंगस्टर्स अगर इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली खुशी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा सा मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए? बस यही देना चाहूँगा कि कभी अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने बनाया है और आप उस नबी की उम्मत में से हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई डिक्टेट करे, कभी किसी की डिक्टेशन ना माने, आप अपने आप से पूछें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, और अच्छा काम करें, दिन में कोशिश करें कि एक अच्छा काम करें और जो अल्लाह ताला आपसे आपको तौफीक दे ताकि आप कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुबीन, आपका और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम कैसा लगा आपको ये बताएंगे आप अपने कमेंट के ज़रिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।